सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि ये सेशन भारतीय खोज पे चल रहा है हमारा, और ये आज का हमारा तीसरा डे है या तीसरा स्टेट है इस सीरीज में। और इससे पहले हमने चर्चा की है तमिलनाडु और मेघालय पे। आज हम जानेंगे पंजाब के बारे में, और पंजाब के बारे में, वहाँ से कल्चर, वहाँ के पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल फैब्रिक से रूबरू कराने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर विनय कुमार मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो फॉर द वेरी फाउंडेशन ऑफ टुडेज रिसोर्स पर्सन, नाउ लाइक टू इनवाइट कनीज फातिमा जी, ओवर टू यू प्लीज। कनीज फातिमा जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज। It is not there. Hello. Hello, good evening. It's Mani Prakash from Niti Aayog. Please, Abhishek, Kaniz is Yes. not there. Okay, ma'am, I start. I do the introduction. So, on behalf of Saxon Society, it's my privilege to introduce our resource person. Professor Vinay Kumar Mehra is a distinguished academician, administration, and public intellectual with a illustrious career spanning several decades. She has held multiple prestigious positions, including former State Information Commissioner, former Vice Chancellor of Dr. Ambedkar National Law University, Sonipat, and former head of the Department of Law at Guru Nanak Dev University. Her contributions to legal education and public service are vast and impactful. She currently serves as a member of Juvenile Justice Board, Government of Punjab, and has also been member of Constitution Review Committee, Government of India. As a passionate scholar, she has authored 2 books, over 52 research articles, and has guided 7 PhD and 1 postdoctoral research scholar. Professor Mehra is a founder of NGO Ek Prayas, working for social justice and community upliftment. Her leadership has been recognized with numerous awards, including the Academic Leader Award, Women of the Year Award, and the Best Teacher Award. She has served on several high-level academic and administrative bodies, such as the Executive and Academic Council of Central University, Haryana, Executive Council of CDLU, and Advisory Board of CBLU, Rohil Khan University, Bareilly, and Geeta University. She has also been a visitors nominee at Delhi and Pondicherry universities, and chancellor's nominee at Punjab University and other institutions. A respected peer reviewer, she is associated with the NAC peer team and serves on editorial boards of reputed journals, including those of CPJ, Maulana University, and City University. Professor Muran Mehra continues to inspire generations with her unwavering commitment to education, law, and public services. So, this is the introduction of this resource person. Now, I have to request our resource person to start the session. Over to you, ma'am, please. Vinay ji, you can start, I think. हाँ जी, शुरू कर दें। Please, please. You have been introduced, हाँ जी. हाँ जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल. सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड और सक्षम रोजगार सोसाइटी की प्रेसिडेंट ज्योतिका का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे सबके साथ अपने विचार शेयर करने के लिए एक मौका दिया है। तो पंजाब से खाली मेरी पैदाइश मेरे ननिहाल बॉम्बे में हुई है, उसके बाद बाकी सारा कुछ मेरा पढ़ाई, शादी, जॉब सब पंजाब में ही रहा है। तो लंबा अरसा अमृतसर में रहने के बाद कुछ समय चंडीगढ़ और सोनीपत में मैंने बताया है। विनय जी, अभी कहाँ से ज्वाइन किया आपने? अमृतसर में हूँ। अमृतसर. हाँ जी, अमृतसर में हूँ। तो बेटी आई हुई है, आज हमारा एक फैमिली डिनर भी है, वो सब लोग चले गए हैं। मैं बाद में जाऊंगी बेटे के साथ। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं रुकी हुई हूँ। तो पंजाब को जानना मतलब भारत को जानना है, क्योंकि पंजाब की जो संस्कृति है, सबसे सभ्यता है, वो सबसे पुरानी मानी जाती है। ये
भारत का दाहिना भुजा इसलिए भी कहा जाता है कि जितने भी आक्रमण हुए उसको पंजाब ने झेला है। इसलिए आज भी पंजाब के लोग बहुत जुझारू हैं, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेने में, हर काम करने में पंजाबी हमेशा आगे रहते हैं, अच्छी बातों में भी बुरी बातों में भी, दोनों तरफ से है ना। उनकी ये जो क्वालिटी है कि एग्रेसिवनेस वो है। तो पंजाब को सप्त सिंधु नाम से भी शुरुआत में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो हमारा एरिया था पंजाब का, अफगानिस्तान तक माना जाता है। इसका उल्लेख हमें बहुत साहित्य में भी मिलता है। इवन गुरु गोबिंद सिंह ने जो अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में भी इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना, और वो सारा जो एरिया बताते हैं उस सप्त सिंधु से है। लेकिन बाद में ये एरिया पंजाब तक सीमित हो गया कि 5 नदियां, पहले 7 थी तो सप्त सिंधु था, और सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका ये एरिया सारा जो अभी कुछ पाकिस्तान में चला गया, हड़प्पा और मोहनजोदारो। लेकिन आज भी हमें रोपड़ के पास और हरियाणा में कुछ कुछ जगह पे वो अवशेष मिलते हैं। ASI हमारे आर्कियोलॉजी ने जो निकाला है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का ये सारा प्रदेश माना जाता है। यहीं पे वेदों की रचना हुई है, हमारे चारों वेद जो लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद। तो पंजाब जो बाद में 5 दरियाओं तक सीमित रह गया, जिसमें सरस्वती और सिंधु इससे निकल गए, तो रह गए सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और झेलम। तो ये 5 आप का मतलब होता है पानी, तो 5 दरिया रह गए, तो फिर पंजाब इसका नाम पड़ा। फर्दर अच्छा, यहाँ जो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या आर्य, तो इसका उल्लेख हमें सभी पुराणों में, जो ऋग्वेद में, क्योंकि ये लोग कोई खास पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करते रहे हैं, और इसके उल्लेख हमें हर जगह पुराणों में, उपनिषदों में मिलते हैं। अग्नि, पानी, सूर्य की उपासना से ही यहाँ की संस्कृति शुरू हुई। ऋग्वेद का पहला श्लोक भी जो है वो अग्नि को समर्पित है। अब जो पंजाब की धरती में जितने भी आक्रमण हुए हैं यूनानियों से, सिकंदर से शुरू करें हम तो पोरस ने उसको रोका था, और सारा दुनिया को जीतने का जो सपना लेके सिकंदर आया था, उसका वो सपना पंजाब में आगे टूट गया कि वो ब्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया, आगे बढ़ ही नहीं पाया, मतलब पंजाब भी पूरा वो जीत नहीं पाया। यूनानियों के बाद फिर आए शक, कुषाण, हून, फिर इसी तरह उन्होंने जब आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया शाकल, जिसको बाद में सियालकोट कहा जाता है, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। सबसे ज़बरदस्त हमला जो हम इस प्रदेश को कहते हैं वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। उस समय राजा दाहर सिंध में राज्य कर रहे थे, और उन्होंने पूरा उससे लोहा लिया, लेकिन फिर अचानक उसको कैद कर लिया धोखे से, और उनको जब मौत के घाट उतारा और उनकी जो भी पत्नी और बेटियों को कब्जा किया, उन्होंने ले गए, तो बेटियों ने अपने पिता का और अपने बाकी लोगों का इस तरह से बदला लिया कि मोहम्मद बिन कासिम को उन्होंने, दोनों बहनों ने मारा, और खुद भी फिर वो वीर गति को स्वयं ही उन्होंने, क्योंकि यहाँ शुरू से ये हमारी जो भारतीय परंपरा रही है कि स्त्रियाँ नहीं चाहती कि हमारे मरे हुए शरीर को भी कोई छुए, तो वो जौहर की भी प्रथा रही वो राजस्थान में। लेकिन पंजाब में कभी सती का इंसिडेंट राजा रंजीत सिंह के टाइम में सुनने में आया था, उससे पहले कभी नहीं आया। फिर
तुर्क मोहम्मद गजनवी आया, उसने भी पंजाब को ही अपना टारगेट किया, बहुत सारे मंदिर लूटे, क्योंकि पंजाब में आज भी, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ हमारा सारा सभ्यता डेवलप हुई है, तो एक चप्पे चप्पे पे हमें महाभारत रामायण काल के वो सारे आज भी देखने को वो सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो मंदिरों को लूटा और भी लोगों को गुलाम बनाने के लिए साथ ले गया। और फिर उसके बाद गौरी ने भी उत्तर भारत को अपना निशाना बनाया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा, लेकिन हर बार फिर से आया, फिर से आता गया। और 18वीं बार चौहान हारे अंदर की फूट के कारण। जब भी अंदर की फूट होती है तो फिर बाहर वालों को हम पे हमारे घर को भेदने का रास्ता मिल जाता है। और चौहान, पृथ्वीराज चौहान की, उसने एक बार भी पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया। ये हमें हिस्ट्री से एक सबक लेना चाहिए अपने इस पंजाब के इतिहास, कि कभी भी दुश्मन को मत छोड़ो। अगर वो आपके हाथ में आ गया ना, तो फिर उसको फन कुचल के ही उसको छोड़ो, अगर नहीं तो वो फिर से आएगा, अपना पूरा जहर उगलेगा। उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी और फिर उनको मारने से पहले पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार अपने शब्द बेदी बान का प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो उनका जो राज कवि थे चंद्रवरदाई, उन्होंने उस लोकेशन बता दी सुल्तान की कहाँ बैठा है। तो उन्होंने उस शब्द बेदी बांध से फिर गौरी को मार, मतलब खुद वीर गति से पहले उसको भी वीर गति में, उसको भी मौत के घाट पहुंचा दिया। अब जो भौगोलिक हम स्थिति की पंजाब की बात करें, अब इसका जब अंग्रेज आए, कहते हैं जब महाराजा रणजीत सिंह के काल तक हमारी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, अटक से लेकर कटक तक उनका राज्य चला। तो जब अंग्रेज आए, क्योंकि महाराणा रणजीत सिंह के बाद सभी जो उनके सरदार वगैरह थे उनमें फूट पड़ गई, तो आपस की फूट का फायदा अंग्रेजों को मिला। उन्होंने जो उनका उत्तराधिकारी थे उनको भेज दिया इंग्लैंड, और उनका धर्मांतरण भी करवा दिया सरदार दिलीप सिंह का। बाद में उनकी बेटी जो अमृत कौर, जिसका उल्लेख हमें संविधान बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है जिसमें 14 बहनों का योगदान, उसमें अमृत कौर का नाम भी आता है और उसका कंट्रीब्यूशन है। और फिर जब अंग्रेज आए तो इन्होंने पंजाब का सारा रीऑर्गेनाइजेशन किया। जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, कुछ हिस्से इन्होंने बांट दिए, जो मतलब पंजाब बहुत छोटा कर दिया। कुछ हिस्से जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य था वो गिलगिट बाल्टिस्तान की सीमा को भी छूता था। इधर से सतलुज नदी, खैबर दरा, ये सब इतना मतलब एरिया था। तो उन्होंने कहा कि इसको तो हम ऐसे काबू नहीं, तो उन्होंने उसको और फर्दर टुकड़ों में उसका बांट दिया कि हम रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं स्टेट। पेप्सू स्टेट बना दी अलग से, तो जो पटियाला वाला एरिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, फिर से पंजाब दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। तो अभी जो हमारी जो रहेगी धरती, क्योंकि इसके बाद फिर से उसका 1966 जब पंजाबी सूबा की डिमांड आई तो फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और कुछ दो पंजाब बन गया, हरियाणा और पंजाब, और प्लस कुछ हिस्से हिमाचल को, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, कुल्लू का इलाका और कांगड़ा घाटी, वो हिमाचल को मिल गए। लेकिन बाकी इधर जो था एरिया, जो मैदानी था, उसको दो हरियाणा और पंजाब में करके और डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही अभी पंजाब जो है बहुत हमारा सुधर गया है, हम ऐसा मान के चलते हैं।
कहाँ जो पंजाब था, महापंजाब, सप्त सिंधु से पंजाब आया। अभी तो 2 ही नदियाँ यहाँ मेन रह गई हैं, बाकी तो जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती हैं। अभी जो वार के टाइम में जो इंडस्ट्री के चर्चा आई, आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से वो पानी हम ज़्यादा शेयर पाकिस्तान को देते आ रहे हैं। अभी जब पार्टीशन हुआ तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो लोग पाकिस्तान से आए उनको मिलनी चाहिए थी, और ये भी तय ही हुआ था, क्योंकि जो उधर से छोड़ के लोग आए थे उनकी प्रॉपर्टियां तो जो थी वो सरकार ने उनको दे दी जो यहाँ से, लेकिन जो उधर से आए वो विस्थापित रहे कितनी सालों तक, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि वो प्रॉपर्टीज कोई नहीं छेड़ेगा और वो वक्फ प्रॉपर्टीज मानी जाएगी। सो लंबा चंक तो वक्फ वालों को पार्टीशन के टाइम ही मिल गया। सो जो जिन जिन जगह पे मुस्लिम अपने छोड़ के गए वो सारी वक्फ के अंडर दे दी गई। उस समय कोई पॉलिसी, कोई क्या कहते हैं, पेपर नहीं आया, बस एक डेक्लरेशन के बेस पे ही वो सारी प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पे हो गई। अब पंजाब ने पहले भी सब झेला है, उसके बाद भी आज तक हम जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें से हमारा को अफेक्ट तो हुआ ही है, क्योंकि हमारे पास वाघा बॉर्डर भी है, उधर फिर फिरोजपुर वाला, फिर ऐसे 3 हमारे मेजर जो बॉर्डर हैं। चाइना में जब वार हुई तो इतना हमें इम्पैक्ट नहीं लगा 62 में, लेकिन 65 और 71 की वार से पंजाबियों ने बहुत सहा। और अभी रिसेंटली भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब भी पाकिस्तान ने पूरा हमारे यहाँ पे केंद्र बना के, अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर सिटी है, अमृतसर पे भी किया, उधर से फिरोजपुर अबोर वाली साइड पे भी पूरे अपने ड्रोन और अटैक जारी रखे। इसके अलावा पंजाब ने आतंकवाद को भी झेला है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। हमें नहीं पता था कि अंदर इतना असला पहुंच चुका है और इतना सब कुछ है, जिसकी वजह से हमारे कमांडोज वगैरह हमारे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। और इस सब चक्कर में क्योंकि अब फौज बुलानी पड़ी तो कुछ अंदर हिस्सों पे भी गया, जैसे बुंगे वगैरह थे वो हर्ट हुए, तो सिख सेंटीमेंट काफ़ी हर्ट हुआ। और उसका क्या नतीजा हुआ कि तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद फिर 1984 में 88 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हमने देखा है। सो अभी ऑपरेशन सिंदूर तो हमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने अंदर से अपने ऐसे सिर के ऊपर से मिसाइलें जाती हुई देखी हैं पंजाबियों ने। और अमृतसर में जब भी यहाँ युद्ध हुए हैं, लोग सिविलियंस ने अपने घर नहीं छोड़े हैं, बकायदा फौजियों के साथ राब्ता, उनको क्या चाहिए, हर उनकी ज़रूरत को, और आसपास के जो इलाकों में जो फार्मर्स रहते हैं, किसान रहते हैं, उनकी ज़रूरतें भी अर्बन एरिया से पूरी करते रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और काफ़ी मीटिंग्स भी उसके लिए हुई हैं। आज की डेट में अपनी कैपिटल और हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा के साथ शेयर करता है, चंडीगढ़ को शेयर करता है, और हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी हमारी जॉइंट ही है। सबसे मज़े की बात यह है कि आज पंजाब में अभी भी कस्टमरी लॉ चलते हैं। कस्टमरी लॉ जिनका आप रेटिगन डाइजेस्ट में उल्लेख देख सकते हैं, 2 तरह के कस्टम्स हैं, रिवाज आम और वाजिब अर्ज। रिवाज आम तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कस्टम थे, अब कस्टम की डेफिनेशन प्रीवी काउंसिल ने
एक लॉन्ग बैक पूर प्रसाद वर्सेस शेर दयाल केस में क्या कस्टम इज अ रूल which is in a particular family or even in a particular district or in a particular sect, class, tribe, but it has a long usage and it has a force of law, so people accept it. So during the British period they tried to uh, make a consolidation of those customs, and they consolidated in Ratigan Digest. सो इवन टुडे जब आज भी हम बात करते हैं तो दो जगह पे कस्टमरी लॉ आज भी पंजाब में, एक तो मैरिज के केसेस में खासकर जाट फैमिलीज, तो यहाँ जाट्स भी हैं, फिर जो जिनको कहते हैं शहरी सिख, अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, लेकिन ये जो कस्टमरी लॉ है ये ज़्यादातर जाट्स में अवेलेबल है। उसमें एक करेवा मारिश है और एक है चादर अंदाजी। हमारे हिंदू लॉ में तो भाई की पत्नी माँ के समान है, वो शादी प्रोहिबिटेड है अंडर प्रोहिबिटेड डिग्रीज, लेकिन इस कस्टम के अंतर्गत क्योंकि पंजाब मेनली एग्रीकल्चर रहा और प्रॉपर्टीज जाए ना, क्योंकि यहाँ लड़कियों को भी प्रॉपर्टी मिलती रही है कस्टमरी लॉ के अंडर, तो जाए ना, तो इसलिए क्या था कि भाई के साथ शादी होगी और उसके लिए कोई खास सेरेमनी की ज़रूरत नहीं, एक चादर डाली जिसको चादर अंदाजी कहती है। और करेवा तो बिल्कुल जो लो फैमिली जिसमें बिल्कुल ही जिनके पास इकोनॉमिक सोर्सेज भी नहीं है कि दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, जैसे आज लिविंग रिलेशनशिप की बात हो रही, वो करेवा मैरिजेस इस तरह से आज भी कई एरिया में प्रोमिनेंट हैं। तो मेजॉरिटीज़ जो पंजाब में हिंदूज हैं और सिख्स हैं, लेकिन अभी क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आबादी भी काफ़ी है। और ये बड़ा रिसेंट शॉकिंग डाटा आए हैं कि जितने भी हमारे बॉर्डर ज़िले हैं वहाँ पे कन्वर्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। खासकर क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने जो मजहबी सिख्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में। और अब तो हाई क्लास में भी कन्वर्जन उन्होंने इस तरह से प्रोपोगेट कर दिया है कि किसी भी एक हाई क्लास का बंदा जिसको एक मॉडल बना के पेश किया और फिर उसके माध्यम से फिर कन्वर्जन। पंजाब इस समय काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। अमृतसर जो इसका मेन सिटी है, तो यहाँ स्वर्ण मंदिर है और जलियांवाला बाग के नाते अमृतसर का अपना एक इतिहास है। 1919 में जो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई और मास किलिंग जिसको हम बोलेंगे वो की थी, वो भी जलियांवाला बाग अमृतसर में है और वो वैसाखी वाले दिन हुआ था। वैसाखी का मेला यहाँ का प्रोमिनेंट त्यौहार है क्योंकि वो हार्वेस्टिंग सीजन से भी जुड़ा है और उस समय हम क्या कहते हैं कि जितनी भी अपनी फसल बेचने के बाद एक जोश में हमारा किसान, हमारा जाट जो है वो रहता है। इसके लिए आपको कविताएं भी मिल जाएंगी। धनीराम चातरिक ने भी लिखा है कि समय वाली डांग नो तेल लाई के मारदा दमा में जट मिलने आ गया। तो उस समय वो कैश क्रॉप जो बेच के जो पैसे आए होते हैं ना, तो उससे वो उल्लास। लेकिन बैसाखी के साथ जो पंजाब का एक ऐतिहासिक इवेंट जुड़ा है वो है खालसा पंथ। ये जानते कि गुरु नानक देव जी ने एक परंपरा चलाई कि किस तरह से हम गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा को पा सकते हैं। कोई हमें रिचुअल्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय समाज में इस तरह इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ आ गई थी कि इतना सब आपको कहते हैं रिचुअल्स थे कि एक आम व्यक्ति उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता था।
चाहे वो मैरिज के लिए रिचुअल्स हो या अन्य संस्कारों के लिए हमारे 16 संस्कार माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मैरिज और वो अंतिम संस्कार पे इतना ज़्यादा वो होता था। तो उन्होंने क्या ये रिचुअल्स का उन्होंने खंडन किया। तो एक नई हमारी जो परंपरा गुरु नानक देव जी ने शुरू की, उसके बाद एक के बाद एक 10 गुरु हुए हैं जो सांचे गुरु हैं हमारे सबके, चाहे हम उनको कहें सनातनी या हम कहें हिंदू या फिर सिख। आज भी सब लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। आज भी जो दरबार साहब का नाम स्वर्ण मंदिर है, क्योंकि उस मंदिर में सोना लगा हुआ है, तो स्वर्ण मंदिर है। वहाँ अकाल तख्त है। उस अकाल तख्त की जो अगर इतिहास देखें तो वहाँ पे काली का स्थान था, लेकिन आज वो जो अकाल तख्त है वो एक उनका बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसको कहते हैं, जहाँ से वो कोई भी ऑर्डर करते हैं कि इस व्यक्ति को इसने पंथ के साथ कुछ बेअदबी की है, उसको तनख्वाहिया घोषित करना, फिर उसको सजा सुनाना, ये अकाल तख्त है। वैसे तो 4 तख्त हैं पूरे भारत में। एक हमारा अमृतसर का हो गया, दूसरा अनंतपुर साहिब, तीसरा नांदेड़ और चौथा पटना साहिब। ये सभी जो तख्त हैं अपनी इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है अपने आप में, सभी चारों तख्त इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जो अकाल तख्त है ये हमेशा अपनी सुप्रीमेसी रखता है। और पंजाब में ये जो अकाल तख्त के अंडर जितने भी पंजाब के गुरुद्वारे हैं उन सबका होल्ड SGPC जो संस्था बनाई गई, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका भी वो जो सेंटर है वो अकाल तख्त है। तो ये पॉलिटिकल सीट भी है और धार्मिक सीट भी है। हम इसको इस दोनों स्थितियों में देखते हैं। आनंदपुर साहिब का जो महत्व है कि वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ साचा था। जब गुरु तेग बहादुर जी को अपना बलिदान देना पड़ा देश और धर्म के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे। उस समय कश्मीर में जो बाहर विदेशी आक्रांता आके अपना इस्लाम का जो प्रचार जोर शोर से कर रहे थे और इतनी लोगों से जबरदस्त, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे कि हमें बचाइए। तो इससे पहले कि गुरु जी कुछ जवाब देते, तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो उस समय जस्ट 12 साल के थे, 10 या 12 साल के, उन्होंने कहा कि ये समस्या के लिए एक कोई महापुरुष का बलिदान चाहिए। और उन्होंने कहा पिताजी आपसे बढ़कर कौन महापुरुष हो सकता है। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ जाके कह दो कि अगर हमारा गुरु धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब उसके साथ धर्म परिवर्तन। तो गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया गया, उनको बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो जहाँ पे उनका शीश धड़ से अलग किया गया, आज वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक में दिल्ली। सो दिल्ली से तो नाता पंजाब का रहा ही है। तो देखा, वैसे उससे पहले छठे गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने भी 2 तलवारें रखनी शुरू की थी, मेरी और पीली। एक सज्जनों की सुरक्षा के लिए, मतलब एक धार्मिक कार्यों के लिए, और एक दुश्मनों का संहार करने के लिए। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने इस पे लिए देखा कि अभी हमें देश और धर्म की रक्षा के लिए एक ऐसे लोगों का फौज, क्योंकि जब लगातार हम पे हमले हो जाते हैं हम अपने को कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर हमले का हमने डट के मुकाबला किया है, फिर भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने उस अनंतपुर साहब में वैसाखी वाले दिन आवाहन किया लोगों से कि कौन है जो अपना शीश, मुझे शीश चाहिए, मुझे शीश चाहिए।
तो अलग अलग जातियों से, अलग अलग प्रांतों से, उड़ीसा से, बिदर से 5 लोग आगे आए कि हम अपना शीश देश और धर्म के लिए देने के लिए तैयार हैं। तो बाद में जिनको उन्होंने 5 प्यारे दिया और उनको अमृत छकाया, और फिर उनसे ही खुद भी अमृत छका कि मैं भी गुरु भी हूँ और चेला भी हूँ, एक ऐसी परंपरा। और उसके बाद उन्होंने गुरु गद्दी की परंपरा को ख़त्म करके गुरु ग्रंथ साहब, जो 5वें गुरु जिन्हें संकलित वाणी की थी अपने से पहले वाले, और बाद में भाई वीर सिंह और अन्य लोगों ने उसमें बानियाँ, इसमें अलग अलग हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी धार्मिक गुरु हुए हैं, 14-15 संतों की वानियाँ उसमें संकलित हैं कि गुरु ग्रंथ साहब आज से हम सबका गुरु है और वही हमारा मान्य रूप है। उसका पूरा बकायदा ऐसे ही सम्मान होगा जैसे हम एक साक्षात गुरु का करते हैं। अमृतसर के एक बहुत ही हमेशा ही खुशहाल प्रांत रहा है, इसीलिए तो ज़्यादा हमले पंजाब ने झेले हैं। मेन यहाँ के त्योहारों की बात मैंने कहा, बैसाखी है, माघी है ना, फिर हम नवरात्र, फिर जिस दिन गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान, वो हम जोड़ मेला के रूप में, ये जून में ही आता है, और तपती तेगों पे उनको रखा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्म चेंज नहीं किया। फिर सभी गुरुओं के जन्मदिन और उनके जो निर्वाण दिवस गुरु पूरब के रूप में मनाए जाते हैं पूरे गुरुद्वारों में, उस तरह से पाठ वगैरह होते हैं। अब हम अगर इनके मेन सिटीज़ की बात करें, अमृतसर के बारे में मैंने बताया, पटियाला जो रियासत है, और वहाँ की पटियाला जूती और परांदे बहुत मशहूर है। बठिंडा एक ऐतिहासिक स्थल है। इसी तरह सरहंद और फतेहगढ़ साहिब। सरहंद में जब गुरु साहिब के चमकौर की लड़ाई में 2 साहबजादे शहीद हुए उनके साथ, और 2 को कैद करके दीवारों में चिनवाया गया था सरहंद के किले की। तो बाद में बंदा बहादुर ने जाके उस सरहंद के नवाब को मतलब शहीद किया, उसको मतलब बदला लिया गुरु पुत्रों की शहादत का, और वहाँ पे गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब फतेह की, इसलिए फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा हमारा। बटाला हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है, फॉरेन लेवल की इंडस्ट्री यहाँ, मतलब पार्ट्स इंडस्ट्रियल गुड्स बनते हैं। बटाला का साथ हमारा एक और प्राचीन इतिहास है कि गुरु नानक देव जी का ससुराल भी है, तो हर साल उनकी शादी वहाँ होती है, और उस दिन लोकल हॉलीडे रहती है, बारात निकलती है गुरु नानक देव जी की प्रॉपर, और पूरा शहर उसमें शामिल होता है। दूसरा, वीर हकीकत राय का बलिदान, वो भी हमारा आपको पता ही है कि उनको भी कहा कि इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने अपना नहीं किया। वो भी मात्र 14 साल के थे, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और शहादत ली। और उनकी जो वाइफ थी, क्योंकि उस समय शादियां या विवाह छोटी एज में होने शुरू हो गए थे, तो उनकी जो अभी पत्नी बनने वाली थी, उनकी सगाई हो चुकी थी, उसका नाम भी लक्ष्मी था, और वो सती हुई, एंड बटाला में उसकी समाधि है। तो बटियाला वैसे तो पंजाब का चप्पा चप्पा ही बहुत अपने इम्पोर्टेंस रखता है, शिवालय हैं, इवन कहते हैं कि यहाँ से जो, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह को मद्र देश का है, तो माद्री जो थी, जो कुंती और माद्री मतलब पांडु की 2 पत्नियां, वो मध्य प्रदेश की थी। इसे गंधारी, वो गंधार, वो तो अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया। पंचाली जो द्रौपदी थी, वो भी इस एरिया से बिलोंग करती थी। इवन कौशल्या जी, माता कौशल्या का भी प्रांत। अमृतसर में जो और ऐतिहासिक स्थान है वो है राम तीरथ।
ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता रही और वहीं लव कुश को जन्म देके और उसको उन शिक्षा दीक्षा दी, शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह की शिक्षा उसने वहीं पे रही थी। वो भी अमृतसर के बिल्कुल 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी सभी सिटीज तो है ही हैं। अब हम आए कि इस समय स्थिति क्या है पंजाब की। एक टाइम था कि जीडीपी में नंबर 1 था पंजाब, आज बहुत नीचे आ चुका है, विस्तार में 18वें। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई क्योंकि यहाँ से जब क्योंकि बार बार अटैक होते रहे 65 का 71 का, लोगों ने इंडस्ट्री शिफ्ट करनी शुरू कर दी। उसके बाद उग्रवाद के समय में क्योंकि उनको एक्सटॉर्शन मनी देनी पड़ती थी तो भी लोग दिल्ली या हरियाणा में अपनी इंडस्ट्रीज ले गए। तीसरा कारण था कि जो लेबर यूनियंस सपोर्टेड बाय लेफ्ट, उन्होंने रोज रोज धरने करके यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ताले लगवा दिए। अब इंडस्ट्री नहीं रही तो रोजगार भी नहीं है बच्चों के पास। तो अब मेजर समस्या होगी कि यूथ जो है बाहर जा रहा है। पहले तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाते थे, आज +2 के बाद ही पेरेंट्स भी कहते हैं जो यहाँ खर्च करना है वहाँ कर दो, साथ में कमाएंगे, साथ में अपनी पढ़ाई का भी खर्चा निकाल लेंगे। एक तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम है। दूसरा ड्रग, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को अगर हम बाहर भेज देंगे तो वो ये ड्रग्स से बच जाएगा। हालांकि हो सकता है कि बाहर जाकर वो दूसरी तरह के ड्रग्स या दूसरी तरह की और प्रलोभन में फंस जाए, लेकिन यहाँ वो अपनी जितनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर लाखों रुपए देकर भेज देते हैं, लीगली इलीगली वापस भेजना शुरू कर दिया अमेरिका ने, और भी बहुत सारे कंट्रीज ने अपने इमिग्रेशन रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। लेकिन फिर भी लोगों का जाना, और इतनी इमिग्रेशन की यहाँ जो दुकानें खुली हुई हैं वो खुली हुई हैं, पलायन जारी है, पलायन जारी है। दूसरी तरफ यहाँ माइग्रेंट लेबर, क्योंकि यहाँ कोई लेबर बचा नहीं तो नेचुरली बाहर से लोग आएंगे। अब जब माइग्रेशन होती है दूसरे इलाकों से तो यहाँ का आपकी संस्कृति चेंज हो जाती है। अब जो त्योहार यहाँ के लोकल नहीं थे अब वो भी अब बहुत जोर शोर से मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा हो, छठ पूजा हो, ऐसे जो कभी हमने बचपन में सुने ही नहीं थे। अब क्योंकि मास लेवल पे माइग्रेशन है तो उनका कल्चर तो साथ में आएगा ही, और डेमोग्राफिक सारी सिचुएशन भी बदल जाती है। किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं क्योंकि फार्म लॉज जो बन रहे थे, अब किसानों को पता नहीं, बेचारों को बीच के जो मीडियोकर लोग थे उन्होंने उनको बहकाया कि नहीं जी ये तो आपके फेवर में नहीं है। तो कितनी देर वहाँ पे बॉर्डर पे लोग बैठे रहे, दैट वाज स्पॉन्सर्ड नो डाउट, लेकिन लोग उस चक्कर में फंसे और फार्म लॉ पास नहीं हुए। तो आज किसान जो है वो दुखी है। अब किसान कर्जा तो लेता है कह के बैंकों से कि भाई मुझे अपनी फसल के लिए बीज के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ जो किसान है वो मेजर वो जो कर्जा है वो या शादी ब्याह में या फिर अपने बच्चों को बाहर भेजने में, नॉन प्रोडक्टिव कामों में जब वो लगा देते हैं तो फिर वो रीपे कर नहीं पाते। अब किसान फिर कई बार जो प्रेशर में आकर यहाँ पे आत्महत्याओं की भी, वो तो महाराष्ट्र में भी ये हुआ है कि किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन पंजाब में भी बहुत सारी, क्योंकि वो दे कुड नॉट पे द लोन। इसी तरह ड्रग्स की जो समस्या वो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ मेजर चेंज जो हुआ पॉलिटिकल पंजाब में कि लोगों ने जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज थी उनको नकार दिया, अकाली दल को, कांग्रेस को, और जो अकालीज की सहयोगी पार्टी थी बीजेपी को भी नकार के, क्योंकि आपने उनको कहा कि हम 1 हफ्ते में यहाँ से ये ड्रग की समस्या को हल कर देंगे। तो लोगों ने इस
क्योंकि वो इतने दुखी हैं। हर परिवार में से आपको यूथ गायब मिलेंगे, या तो वो बाहर है या वो फिर ड्रग का शिकार होकर खत्म हो गए। मतलब मेल अर्निंग है ही नहीं। तो ड्रग की समस्या को अब कुछ कुछ हफ्तों से यहाँ की सरकार ने शिकंजा कसना शुरू किया है। एंड वी होप कि ये समस्या, अब क्योंकि बॉर्डर एरिया होने के कारण अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान ड्रग्स यहाँ मास लेवल पे आती है, और ड्रग के माध्यम से इजी मनी हर व्यक्ति को चाहिए। अब पॉलिटिकल नेक्सस, उसके साथ साथ पुलिस का नेक्सस, ये सब होने के कारण ड्रग का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। पहले स्मगलिंग होती थी सोने की, से हम बचपन में सुनते थे सोने की स्मगलिंग हो रही, सोना आ रहा, सोना पकड़ा गया। फिर कुछ हथियारों की स्मगलिंग शुरू हुई, ड्रग की स्मगलिंग हो रही है। तो पंजाब में जो प्रॉब्लम है कि इनको एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होता है, और कैरों के बाद पंजाब को कोई बहुत विजनरी या ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर मिला कि जो यहाँ की इकोनॉमिक का स्थिति को फिर से बहाल कर सके और जो पंजाब की ग्लोरी को फिर से कायम कर सके। तो ये भी एक समस्या है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। जहाँ तक औरतों की स्थिति का पंजाब में सवाल है, तो हरियाणा के मुकाबले पंजाब में औरतों की स्थिति काफ़ी बेटर। यहाँ बहुत ज़्यादा फिजिकल और जो स्टेनुअस हजार्डस वर्क होता है वो औरतों से नहीं करवाते, उनको बड़े सम्मान से रखते हैं, घरों में भी घर से बाहर भी। तो अभी कुछ सालों से उन्होंने घर से बाहर निकल कर काम करना शुरू किया, और दैट टू इस अच्छी वाली जॉब्स। नहीं तो हरियाणा में मैंने देखा है जाकर, क्योंकि 3 साल मैं रही हूँ, कि हर काम औरतें कर रही हैं, और जो मेल रहते हैं वो बैठ के हुक्का पीते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, बस इतना ही उनका काम है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, यहाँ औरतों को पूरा फ्रीडम है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो भी है, फैमिली सपोर्ट के साथ साथ औरतें हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। यहीं से हमारी किरण बेदी हैं अमृतसर की, जो सब जानते ही हैं किरण बेदी के नाम से ही। बाकी बताने को पंजाब तो कहते पंजाब को जानना ही भारत को जानना है। पंजाब को अगर हम जान लेते हैं, हम पूरे भारत को जान लेते हैं। मैंने यहाँ हॉस्पिटैलिटी पंजाबियों की बहुत अच्छी है, हर एक को वेलकम करते हैं, खुले दिल से वेलकम करते हैं, दुश्मन को भी। तो हॉस्पिटैलिटी के मामले में, दलेरी के मामले में पंजाबी लोग हमेशा जहाँ जहाँ जाके बसे हैं वहाँ वहाँ उन्होंने प्रोग्रेस की है। उत्तराखंड में भी जो बिल्कुल बंजर इलाका था वो भी पंजाबियों ने जाके वहाँ बसा दिया, जिसको आज ऊधम सिंह नगर के नाम से जाना जाता है। और ये जो ये पूर्वी पंजाब जो हमारे हिस्से आया था, ये इतना फर्टाइल नहीं था जितना जो पाकिस्तान में चला गया पंजाब, वो ज़्यादा फर्टाइल था। फिर भी आने के बाद यहाँ के लोगों ने पूरी मेहनत के साथ इसको फिर से हरा भरा बना दिया। अब जो और भी पर्यावरण की समस्या चल रही है कि यहाँ पे स्टबल बर्निंग से लोग बाज नहीं आते। कायदा कानून जल्दी हम मानते नहीं, डंडे का जोर से ही हम मानते हैं, तो जिस वजह से वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इम्पैक्ट आया है, और वाटर लेवल इतना कम, क्योंकि हमने पैडी सोइंग शुरू कर दी। मेनली जो पहले हम वीट ज्वार बाजरा बोते थे उससे शिफ्टिंग हो गई,
तो अब कपास मतलब जो कमर्शियल क्रॉप्स करने की वजह से और पेस्टिसाइड के यूज से कैंसर, अब मालवा तो कैंसर बेल्ट के नाम से ही जाना जा रहा है। तो ये भी समस्याएं अब सेंटर पे भी, सेंटर ने पंजाब को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 13 ही सीटें हैं लोकसभा के लिए। तो 13 उनको लगता है कि 13 नहीं भी आएगी तो कुछ भी नहीं। अब पंजाब की समस्या नेशनल समस्या होनी चाहिए और नेशनल लीडरशिप को देखना चाहिए कि भाई पंजाब अगर खुशहाल है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर स्टेट है, वहाँ से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रॉप करके दूसरी स्टेट्स में जा रही हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे लगता है काफी है आज के लिए इतना। सही। सो थैंक यू मैम फॉर योर इंसाइटफुल सेशन और पंजाब। काफी कुछ हमें सीखने को मौका मिला इससे। और अब मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि हम एक ग्रुप पिक्चर ले सकें रिकॉर्ड पर्पस के लिए, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। प्लीज आप सभी अपनी कैमरास ऑन कर लीजिए। तो थैंक यू। नाउ आप सभी अपने क्वेश्चंस जो भी आपके पंजाब और सेशन के रिगार्डिंग है हमारे मैम से पूछ सकते हैं। सो प्लीज फ्लोर इज ओपन। तो मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि हम एक इशू देखते हैं कास्टिज्म का या कास्ट का, जैसे उत्तर भारत में काफी प्रेवलेंट है, क्या ये सेम इशू पंजाब में भी है कास्ट का, या फिर पंजाब में अगर है तो वो किस तरह से देखा जाता है? Recording in progress. मैं ना अभी मोबाइल पे शिफ्ट कर रही हूँ और इसको अपने लैपटॉप को ऑफ कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू रश टू द प्लेस वेयर ऑल माय हाँ जी, अभी ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ, अभिषेक अपना सवाल। यस मैम, मेरा क्वेश्चन कास्ट से रिलेटेड था। जैसा कि कास्टिज्म हम उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पाते हैं, क्या ये सेम इशू पंजाब में भी है? अगर पंजाब में है तो वो किस तरीके से पाया जाता है? तो इस पे मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, पंजाब में कास्ट का है जो, इसीलिए तो यहाँ कन्वर्जन ज्यादा है। तो जो जिनको हम कहते हैं कि वो काम में या मजदूर या फिर मजहबी, वो पहले तो गुरुओं ने 4 दरवाजे गुरुद्वारे के इसी लिखे थे, चारों जातियों धर्मों के मतलब कास्ट के लोग आ सकते हैं, उनके लिए ये कॉमन है। लेकिन धीरे धीरे फिर से वही स्थिति, क्योंकि ब्रिटिश काल में कास्टिज्म को बहुत ज्यादा वो समान
कास्ट सिस्टम को करने के लिए बहुत सारा, और ये जो मैं बताया ना अभी कस्टमरी लॉज का, वो भी बहुत सारे ऐसे कस्टम जो थे भी नहीं इतने प्रोमिनेंट, उनको भी प्रोमिनेंट बना के, अब वंस ब्लैक एंड व्हाइट जो चीज आ जाती है तो उसका फिर अपना एक इम्पैक्ट रहता है। इसी तरह कास्ट के लिए भी उन्होंने पूरा इस तरह से किया। तो आज भी हम देखते हैं कि कास्ट का है। हम अगर गांव में जाते हैं तो हर कास्ट का अपना एक गुरुद्वारा रहता है, तो वो समस्या तो है। थैंक यू मैम फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में विनीता सिंघल जी की तरफ से, व्हाई पॉलिटिकली नो स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज फ्रॉम पंजाब इवन आफ्टर जनरल प्रॉस्पेरिटी। वाई का आंसर, क्योंकि मैं तो पॉलिटिकली इतने एक्टिव हूँ नहीं, कुछ यहाँ पे जो क्लैन वाली जो रही है ना पद्धति, जैसे जो हम कहें कि महाराजा रंजीत के समय से भी जो ईगो वाली प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से भी हम दूसरे लोगों से ईर्ष्या, इवन आप देखोगे यहाँ एक ही परिवार में एक भाई अकाली दल में है, दूसरा कांग्रेस में है, बिकॉज दे वांट पावर। उस चक्कर में यहाँ पता नहीं क्या क्या चल रहा है, एक दूसरे की टांगे खींचने वाला हिसाब किताब, या वो चेहरा यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं, सिख चेहरा ही आगे आए कि मेजोरिटी सिख है, तो उस वजह से भी कुछ। अब अर्बन जैसे हमारे जो अकालीज और बीजेपी का होता था, तो अर्बन जो मोस्टली सीटें जो होती थी वो बीजेपी को दी जाती थी, और रूरल जो थी कि रूरल मासेस में ज्यादातर वो अकाली दल को दी जाती थी, और मेजोरिटी ही उनको 2/3 वो होल्ड करते थे और 1/3 हम। और बहुत सारे ऐसे मतलब ये इसको हम कहेंगे जो प्रकाश सिंह बादल जी की अपनी एक सोच थी कि उन्होंने भी पनपने नहीं दिया यहाँ कोई लीडर। कांग्रेस के इंटरनल फूट के कारण कांग्रेस भी यहाँ पे डाउन हो गई। अदरवाइज हमेशा ऐसे होता था, एक बार अकाली दल, एक और अकाली बीजेपी, और दूसरे फिर कांग्रेस, ऐसे शिफ्टिंग। ये जो है ये लंबे संघर्ष का भी नतीजा है कि हम जो है वो ऐसे एक, हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होते। अगर वो ऐसे महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आया तो सारा साम्राज्य बिखर गया। तो आज भी हम लोगों की जो नेचर है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, वो हम क्यों नहीं दे पा रहे, हमें नहीं, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या कारण। Thank you for answering the question. Any more question? If you have, please ask. So I think there are no more questions. So I'm moving towards our president, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Court Commission. Please, ma'am, for your concluding remarks, and I have to invite. सो थैंक यू अभिषेक। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से बातें, और जैसे आप बात कर रही थी कि जैसे आपने बताया कि आपने अमृतसर से हमें ज्वाइन किया था, तो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे हम पंजाब के अंदर है, पंजाब की छोटी 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 जो इसको कहते हैं ना टू द डिटेल्स, आपने बातें बताई इनकी, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, वहाँ की नदियों से हमने शुरुआत की क्योंकि नाम ही पंजाब से आता है, तो उन सब के साथ, और पूरे एक कल्चर का समावेश, और किस तरह से जो आपने उस समय के पंजाब के कल्चर को कि साथ में रहना, जो लिव इन के साथ आपने उसको कंपेयर किया कि आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप है वो पंजाब में एक कल्चर के माध्यम से या एक रीति रिवाज के माध्यम से पहले से ही मनाया जा रहा है, और भाभी को चादर ओढ़ने का जो आपने बताया, और सभी चीजें, ऑपरेशन ब्लू स्टार, सारी वॉर्स और सब तरह से एकदम से उस पूरे इतिहास को
परत दर परत आपने खोला और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम वहीं पर बैठे हुए हैं। और जब आप बात कर रहे थे तो थोड़ा सा संबंध, मैं खुद को भी पंजाब का मानती हूँ, क्योंकि पिताजी का जन्म पंजाब में हुआ और मेरी माँ का जन्म भी लाहौर में हुआ था। तो हमारा गांव जलंधर में, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में कोटला, हम जाते रहे उस गांव में भी। तो कुछ मुझे भी लगता है कि पंजाब के बारे में थोड़ा सा जो मैं फील करती हूँ, थोड़ा सा 2-4 मिनट में बता के अपनी बात, और आपका धन्यवाद तो है ही। तो मतलब हमने ये पाया कि पंजाब एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट भी है, पर आपने जैसे दो मुख्य कारण बताए, एक ड्रग्स और बच्चों का विदेशों में चले जाना, जिसके चलते जो आज जो जीडीपी उसकी टॉप पे होती थी, आज जीडीपी बहुत नीचे आ गई है। और जो बच्चों का विदेश में जाना वो आज से नहीं है, वो आज से कोई 50-60-70 साल पहले से ये प्रोसेस पंजाब का शुरू हुआ है। और इसीलिए जो पंजाब में पॉपुलेशन, जो हिंदुस्तान में सिख पॉपुलेशन है वो लगभग 1.72% है, और कनाडा की सिख पॉपुलेशन 1.9% है। मतलब कि परसेंटेज ऑफ सिक्स इन कनाडा इज मोर देन परसेंटेज ऑफ सिक्स इन इंडिया। सो इट स्टार्टेड बहुत सालों पहले से, 50 साल पहले से पंजाब से सिखों का विदेशों में जाना शुरू हुआ। और हम जहां भी विदेश में जाते हैं, वो अगर हम यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो हमें हर स्थान पर सिखों की पॉपुलेशन दिखती है। पंजाब का कमजोर होना कहें या पंजाब का फैल जाना कहें, मतलब वो भी दोनों, हम दोनों तरीके से पंजाब को देख सकते हैं। और पंजाब में हिंदू पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है, लगभग 38.49% है, जबकि सिख पॉपुलेशन 57.69% है। और जो नॉट ओनली कि पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है और कनाडा में सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है, पर उनकी पार्लियामेंट में भी जो सिख है वो 4.3% है। आउट ऑफ 338, 15 जो सदस्य हैं वो सिख हैं। तो वो ऐसी कम्युनिटी है जो कि अपने आप में हमेशा एक बदलाव के लिए और एक नई चीजों को स्वीकार करने के लिए, पंजाबियों में वो दम रहा है। जैसे आपने भी बताया कि पंजाबी में एक ही परिवार में एक भाई अकाली दल को देता है, दूसरा कांग्रेस को देता है, तो तीसरा बीजेपी को भी देता है। मैं भी खुद ये बोलती हूँ कि हम पंजाबी में कभी भी एक हम कम्युनिटी की बात नहीं करते कि पंजाबी है तो हमें पंजाबियों को वोट देना है। ऑफिस में अगर लड़का होना चाहिए तो पंजाबी होना चाहिए, मतलब कहीं पे पंजाबी में ये कहीं सिस्टम है ही नहीं कि आपको पंजाबी को सपोर्ट करना है या आपको पंजाबी को आगे बढ़ाना है, या वो पंजाबी आपकी जाति का या उस तरह से होता है। तो वो एक पंजाब की खासियत कहूंगी मैं, उसको कमजोरी तो नहीं कह सकती, खासियत है कि पंजाब बहुत ओपन है। अगर हम आर्य समाज की स्थापना देखें तो पंजाब में ही आर्य समाज की स्थापना होती है। पंजाब एक्सपेरिमेंट करता है। आम आदमी पार्टी की जैसे आपने बात की, तो जो पार्टियां कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी एस्टैब्लिश पार्टी थी, पर पंजाब ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। तो पंजाबी अपने आप में एक्सपेरिमेंट करने का दम रखते हैं। और नशे को लेकर जो पंजाब की समस्या है वो शायद सबसे गंभीर समस्या। और मुझे याद आ रहा है वो फिल्म जो बनी थी उड़ता पंजाब, आज से 15 साल पहले या 12-13 साल पहले वो रिलीज हुई थी। तो वो इसी इसी विषय को लेकर के पंजाब में ड्रग्स की समस्या, पर ड्रग्स की जो सब्सटेंस अब्यूज है वो बढ़ रहा है, उसको रोकना एक बड़ी समस्या है। और यही पंजाब के साथ साथ ये अन्य राज्यों में भी, हरियाणा या दिल्ली, यहाँ भी ये जो ड्रग्स की समस्या है, सब्सटेंस अब्यूज है, वो वहां भी सब ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। और मुझे लगता है कि हम सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस प्लेटफॉर्म से रात के 9 बजे शनिवार के दिन हम शुरू करते हैं अपने देश के किसी भी राज्य पर बातचीत करना। और हमारा ये आज तक जितने भी लोगों ने अपने राज्य के बारे में बताया वो उसी राज्य को बिलोंग करते हैं, और लगभग सभी उसी राज्य से हमें ज्वाइन करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। भारत एक खोज, और अपने देश को जानना, अपने आप को जानना, अपने समाज को जानना, ये सक्षम रोजगार सोसाइटी का एक मकसद है कि हम सब अपने बारे में जाने, अपने समाज के, अपने राज्यों के बारे में, अपने देश के बारे में, और उन व्यक्तियों से जाने जो उस समाज में जिए हैं। जैसे आपने बताया कि जहाँ वो आप पले बड़े, शिक्षा ली, यहाँ शादियां होती देखी, बटाला में क्या होता है, पटियाला में क्या होता है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें जो आपने बताई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें ज्वाइन किया सीए हरविंदर जी ने, चित्रा सरकार ने ज्वाइन किया, हेमा अरोड़ा जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी, और प्रदीप मेहरोत्रा जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमें ज्वाइन किया रघु कालरा जी ने, और हमें ज्वाइन किया रश्मि निगम जी ने, संजय अरोड़ा जी ने, और हमें ज्वाइन किया
सौम्या शुक्ला जी ने फ्रॉम कानपुर, और हमें ज्वाइन किया विनीता सिंगल जी ने। आपका बहुत बहुत, कुछ लोग हमें, मंजू काक भी थी, कुछ लोग हमें छोड़ भी गए हैं, पर क्योंकि रात का समय है, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। और अगले शनिवार जो हमारा सेशन रहेगा वो गुजरात पर रहेगा, और प्रोफेसर जोशपुरा हमारा वो सेशन लेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सब लोग अगले शनिवार वही रात के 9 बजे हमें इस सेशन में ज्वाइन करें। थैंक यू। ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your valuable comments. Now I'd like to request C. Mamta Krishna for a word of thanks. Thank you, Abhishek. Good evening, dear friends. On behalf of Saksham Rozgar Society, I, Mamta, extend my heartfelt gratitude. We sincerely thank Professor Vinay Kapoor Mehra ma'am for sharing her insight on the social and political aspect of Punjab. To our participants, thank you for your enthusiasm and active participation, as your engagement made the session truly meaningful. And we look forward to seeing the same spirit in our future program also. A special thanks to Ms. Jyotika Kalra, the president of Saksham Rozgar Society, for taking the initiative of Bharat Ek Khoj series on her determination to enhance the quality of the session. With that, I wish you all a wonderful evening. Thank you. So thank you for joining this session. आप सेशन को लीव कर सकते हैं, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम रोजगार सोसाइटी पे आपको मिल जाएगा, और प्लीज इसको अपने ग्रुप्स में अपने जानने वाले लोग के साथ शेयर करें। सो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार सबको, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जल्दी मिलेंगे, शुभ जल्दी रात्रि। मिलेंगे। ठीक।